Okay. So once again, good evening. I'm sorry, just joining late for the lecture because today I was busy with little other meeting, and that's why I got little late for the lectures. But let's continue. So we are here with the structure of atom, and just have a we'll have a little recap of the topic what we have seen, because within the today's and tomorrow's within two lectures we are going to cover this chapter that will be covered well. So now what we have discussed here in atomic structure, as we know very well, as when we have started studying the chemistry, the first thing what we counter here chemistry is nothing but matter. Or we not very well that matter is anything which occupies space and possesses weight, whose presence can be detected with our five senses. And we are interested to know the different properties of this matter, and there are different number of things related with the matter. That is what we are interested to know. But furthermore, in 18th century, Dalton is a scientist who put forth that atom is a tiny particle of the matter, and that's why we are interested to know the structure of an atom. So journey began, and Faraday is the first scientist who stated that matter is electrical in nature, and afterwards that has speed up the work towards finding out the structure of an atom. Then J.J. Thomson is the first scientist who discovered the electron, which is a particle which is present in an atom. And second particle is discovered by Rutherford and Goldstein, like scientists, they have discovered the proton. Then furthermore, the third particle is been discovered by Chadwick, named scientist, when he was studying the interaction of radiation with the matter. And finally, we got the three particles, that is proton, neutrons, and electrons, which are known as the fundamental particles of an atom. We know it very well. Moving ahead, the journey didn't stop over there, so it still continued. And furthermore, we got 32, 35 more than different types of particles called as subatomic particles, which are present in an atom. Different ways, many ways, they may be in nucleus and all. So there are more than 32, 35 different subatomic particles. But proton, neutrons, electrons are called as subatomic particles. Then the next question arises: how these particles held together in an atom? Atom is made up of all these particles, subatomic particles. Then the question arises: how these particles are held together in an atom? Different scientists try to find out answer for this one. J.J. Thomson has put forth this atomic model. Then J.J. Thomson atomic model being has some certain limitations. We have proceed for the next atomic model, which is put forth by Rutherford, and we have studied Rutherford's experiment even in 10th standard, and as of now, he studied the interaction. That is, he bombarded alpha radiations with a gold foil, studied the scattering of alpha radiations, has some observations, conclusions, and put for the atomic model. Even Rutherford atomic model has some certain disadvantages, and that's why we proceed for the next atomic model, that is called as Bohors atomic model. Bohrs put forth a very nice concept related to that. He put forth the concept of stationary orbits. Then he given the formula to calculate the energy of electron in nth shell. He also given the formula to calculate the radius of orbital in an atom. And there are many variants of we have seen for this Bohr's atomic model. So he also numbered the principal quantum that is shells, stationary waves 1, 2, 3, 4 away from the nucleus, or you can say KLMN away from the nucleus. But still, it has some certain limitations. And all these atomic models work on some of the background, some of the discoveries which has done in some other fields. That is, electromagnetic radiations were discovered, dual nature of electromagnetic radiations has been studied. Furthermore, quantum theory has came into the existence, as well as de Broglie's principle is there, Heisenberg's uncertainty principles are there. So there are different fields which are developed, emerged, and that help for this different atomic model to study that in depth or detail. But at the end of this three atomic model, again we come from that there are some certain limitations of each and every model, and they didn't give a proper or satisfactory explanation for all of the things or all of the concepts related with the structure of an atom. Then we have the last very advanced branch of physics called as quantum mechanics. And this quantum mechanics has given a very nice atomic model. Basically, again and again, I'm stating that this structure of atom, what the basically is put forth by Rutherford, that is not been rejected by any of the scientists, but that is proved and explained in different ways. So that's why the basically structure what was put forth by Rutherford, that is continued, but different theories try to explain it in different ways. There are many answers, many questions which are raised to Rutherford's atomic model, Bohr's atomic model, are answered by different theories. And the quantum mechanical model, which is an advanced branch of quantum mechanics. Quantum mechanics put forth the many ways, that is mathematical ways to explain this atomic model, that is Rutherford's atomic model. And this model is very, very much mathematical model. So here is the Hamiltonian operator.
that is the equation. This equation is out of the scope of our book because that is a very large, but the lengthy presentation is there, and it's a need a much mathematical part to again to understand this quantum mechanical model. But we'll have some part, some theoretical part of this model and all. So basically, let's start with this now. The fourth atomic model, which is for the quantum mechanics. Then that at this end of this quantum mechanical model, we'll have a complete structure of an atom, which has been widely accepted till throughout the world. Got it? So let's come to the next. That is, you can say quantum mechanical model. That is third one. So here, third one, quantum mechanical model of an atom. Quantum mechanical model of an atom. Here is, you can say, Hamiltonian operator psi is equal to, you can say, E into psi. This is the equation, you can say. Quantum mechanical model has given this equation. This equation has different forms. This is the shortest form what we can present over here. So here in this one, this is called as, you can say, H is called as Hamiltonian, and that is the mathematical operator which is used over here. So ये अलग-अलग तरीके से किया जाता है. This is Hamiltonian, which is a Hamiltonian, which is called as a mathematical operator. यहाँ पे आप उसका ज़्यादा कनेक्शन महसूस नहीं होगा, but it is like जैसे हम लोग रीडबर्ग कांस्टेंट देखते हैं, जैसे हम लोग एवोगाड्रोस कांस्टेंट देखते हैं, that is, you can see like that is a mathematical operator which is Hamiltonian. Quantum mechanical model is purely based on mathematical calculations of this atomic model. So that's why it is out of theoretical scope. So theoretically इसमें उसे explain करना just difficult बनता है उसे, mainly उसे understood करना है तो mathematical, but this is out of scope of our book. So that's why just simply recall or remember this equation. That is Hamiltonian into psi is equal to energy into psi. So this ये त्रिशूल like जो आपको sign दिखता है, this is nothing but the psi. So इसे psi कहा जाता है. This is nothing but the psi. So इसे psi ऐसा pronounce किया जाता है. This is Hamiltonian constant. Hamiltonian बोला जाता है. That is also called as a mathematical operator. And this E is nothing but the total energy of the system. You can say total energy. So this E represents the total energy. Psi is a pronunciation actually, and this psi represents the wave function. Wave function. अभी ये बहुत नए words है आपके लिए. So आप बोलेंगे कि what's happening over here? I will try to simplify this in theoretical sense. So let's move to now the earlier model what we are seeing for the atom. देखिए, this is the atomic model where we have the nucleus at the center and electrons revolves around the nucleus. So this is the atomic model which is put forth by Rutherford and which has been a bit more explained by Bohr. And again, more explained or detailed explanation is given by quantum mechanical model. Is structure. Here are the electrons. यहाँ पे electrons होते हैं. These are the electrons, and we have this atomic model. जैसे आपको बताया गया था कि whenever energy incident on this electron, some energy is incident on the electron. At that time, this electron absorbs some amount of energy and goes to excited, gets to next energy level. So ये जो shells हैं, these are the shell substance. These are nothing but the energy levels. Scientific language में ये energy levels है और जिस energy level में electron revolve होते हैं, these are the routes in which electron revolve around the nucleus. हर electron को अपना एक particular route दिया गया है और उसके अंदर electron उसके around में revolve होता है. Okay, ये सारे atomic model ने ही ढूंढ निकाला और उसके आधार पर ही हम कहते हैं कि this like. तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन रोटेट हो रहा है, इसके ऊपर एनर्जी फॉल डाउन होता है, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, गोस टू नेक्स्ट लेवल. यहाँ पे आ जाता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाता है, थोड़ी देर एक्साइटेड स्टेट. व्हाइल कमिंग टू द ग्राउंड स्टेट, ये इलेक्ट्रॉन वापस एनर्जी इमिट करता है, ये जाता है और इस एनर्जी को प्रिज्म के थ्रू या किसी भी सूटेबल डिवाइस के थ्रू पास करके इसका यहाँ पे स्पेक्ट्रम ऑब्टेन किया जाता है और ये स्पेक्ट्रम डिटेल में स्टडी किया जाता है. तो स्पेक्ट्रम इज रिलेटेड विद दिस एनर्जी. ये एनर्जी का स्पेक्ट्रम होता है और every energy is associated with some certain types of waves, that is wavelength, you can say. Wavelength के साथ वो associated है. So in that sense you can say here कि स्पेक्ट्रम किस तरीके से आ रहा है उसके आधार पर बता सकते हैं कि इसका एनर्जी कितना है. एनर्जी के अंदर मतलब ये जो एनर्जी है, ये जो इंसिडेंट लाइट है, उसके अंदर कौन से वेवलेंथ है और उस वेवलेंथ का एनर्जी कितना होता है, ये हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं. ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ रिलेटेड है. स्पेक्ट्रम के आधार पर इसके अंदर कौन से वेवलेंथ है और उस वेवलेंथ का एनर्जी कितना हो सकता है, दैट व्हाट वी कैन कैलकुलेट सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे. सो इन दैट सेंस इसके ऊपर कितना एनर्जी इंसिडेंट हुआ, उसमें से कितना एब्जॉर्ब किया और कितना इमिट किया, ये दोनों हम लोग निकाल सकते हैं और इसके आधार पर ये दोनों के बीच का, ये दोनों सेल्स के बीच का एनर्जी डिफरेंस कितना है, दैट वी कैन कैलकुलेट. ये इस तरीके से कि मानो हम लोग स्कूल में लॉन्ग जंप करते थे, अभी भी हम लोग काफी सारे हैं, सबको अगर लॉन्ग जंप करने के लिए बोला जाएगा
तो सब लोगों का लॉन्ग जंप अलग अलग होगा। बहुत ही लकी की बात हो सकती है कि किसी का दोनों का तीनों का एक जैसा लेंथ होगा लॉन्ग जंप करने का। हर कोई ना कोई अलग अलग जंप लगाए और वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, हर एक की अपनी स्ट्रेंथ है, हर एक की अपनी एनर्जी है और हाँ अपने एक टेक्निक भी है ना, स्ट्रेंथ पावर टेक्निक ये सारा काम करेगा उसके अंदर और प्रैक्टिस भी होती है, तो ये सारी चीजें उसके ऊपर मैटर करेगी, लेकिन सबका लॉन्ग जंप अलग अलग होगा। तो उसी तरीके से ये सारे शेल्स का एनर्जी अलग अलग है। ओके, और वो कितना एनर्जी डिफरेंस है वो हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये जो स्पेक्ट्रम आ रहा था वो स्पेक्ट्रम सीधा उनके एनर्जी के साथ जुड़ा हुआ है। ये स्पेक्ट्रम हमें बताते हैं कि इसका एनर्जी कितना है, मतलब ये जो हम लोग बात कर रहे हैं इसकी, दैट इज यू कैन से क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की। तो दिस क्वांटम मैकेनिकल मॉडल एग्जैक्टली जो ड्रॉबैक रुदरफोर्ड का था, जो ड्रॉबैक हमारे बोर का था, बोर एंड रुदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन द हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम वेल। हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम को अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। और मैंने बताया कि लाइट रिलेटेड प्रॉपर्टीज, दैट इज स्पेक्ट्रम हैज प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हाइल डिराइविंग द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। और ये जो स्पेक्ट्रम है, दिस स्पेक्ट्रम इज वेरी वेल स्टडीड एंड वेरी वेल इंटरप्रिटेड बाय दिस क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो दिस इज द स्पेक्ट्रम। और स्पेक्ट्रम किसके साथ कनेक्टेड है? स्पेक्ट्रम पर्टिकुलर वेवलेंथ के साथ कनेक्टेड है, पर्टिकुलर वेवलेंथ उस एनर्जी के साथ कनेक्टेड है। तो वी कैन कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल निकाल सकते हैं। और इसीलिए अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करता है तो इसका एनर्जी अलग रहेगा, स्पेक्ट्रम अलग रहेगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करता है आता है तो इसका स्पेक्ट्रम एनर्जी अलग रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन किसी भी सेल से बिलोंग करता हो, कितना भी जंप करता हो, तो सबका उसका एनर्जी अलग अलग रहेगा। तो जो स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन हम लोग बात कर रहे थे, दैट वाज अ ड्रॉबैक ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल, जीमन इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट की बात की थी हमने कि एक स्पेक्ट्रम के अंदर और स्पेक्ट्रम मिलते हैं। ये हमने देखा था, जैसे कि ये वाला हमारा स्पेक्ट्रम अगर देखते हैं तो इस स्पेक्ट्रम के अंदर और लाइन दिखा देते हैं, उसके अंदर और लाइन दिखा देते हैं, उसके अंदर और लाइन, मतलब स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। एक स्पेक्ट्रम के अंदर दूसरा स्पेक्ट्रम, दूसरे के अंदर तीसरा स्पेक्ट्रम, ये जो सिनेरियो मिल रहा था, यही ढूंढने की कोशिश थी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। why the splitting of spectral line occurs? That means there should be different energy levels within atom, and that leads to the discoveries of quantum numbers, that is shell, subshells and orbitals. So already मैं बता चुका हूँ कि these are the cells in which electrons revolves. These are nothing but the energy level. But सिर्फ एक ही एनर्जी लेवल होता है या दूसरा होता है, तीसरा होता है, कैसा है? जैसे कि अर्थ के अराउंड में एटमॉस्फेयर है, काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हमें मिलते हैं ज्योग्राफी में, देखें। उसी तरीके से एटम के अराउंड में जो शेल्स है, सब शेल्स का एनर्जी बढ़ता तो जाता है, लेकिन क्या शेल्स के अंदर और कुछ अलग आपको स्ट्रैप ऑफ एनर्जी मिलते हैं, कुछ बैंड ऑफ एनर्जी मिलते हैं? तो मिलते हैं, क्योंकि इसी कारण से स्पेक्ट्रम अलग अलग आते हैं। सो ये जो है, दिस इज नथिंग बट द शेल्स। शेल्स के अंदर सब शेल्स है और सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, और सबका एनर्जी अलग है। शेल्स का एनर्जी अलग है, सब शेल का एनर्जी अलग है, उसके अंदर की ऑर्बिटल का एनर्जी अलग है। तो एटम के अंदर पहले शेल्स है, शेल्स के अंदर सब शेल है, और सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। इट इज सेम लाइक दैट, कि जैसे कि हम लोग मानो पुणे बॉम्बे सिटी में हम लोग फ्लैट सिस्टम में रहते हैं, तो हमारा फ्लैट किसी ना किसी बिल्डिंग के अंदर होता है। सो सपोज हम किसी बिल्डिंग में है, बहुत बड़ा बिल्डिंग होता है, वहां पे दो चार बिल्डिंग हो सकते हैं, एक बिल्डिंग हो सकता है, उस बिल्डिंग में हमारा फ्लैट है थर्ड फ्लोर पे। थर्ड फ्लोर पे जाएंगे तो थर्ड फ्लोर पे अपना ये फ्लैट है, 2 BHK 3 BHK होता है, और हम उसके अंदर किसी ना किसी एक रूम के अंदर रहते हैं। अभी आप लोग लेक्चर सुन रहे हो तो कुछ लोग किसी ना किसी रूम के अंदर बैठे होंगे, कोई गैलरी में बैठा होगा, है ना, मानो आप आपके रूम में बैठे हो, तो आपका रूम आपके फ्लैट में, आपका फ्लैट उस बिल्डिंग में, वो बिल्डिंग किसी ना किसी एरिया में, लाइक दिस। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर, इस तरीके से फिनोमेना है। तो यहाँ पे शेल्स है, शेल्स के अंदर सब शेल है, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल है। सो दिस इज द सिनेरियो, और इसीलिए ऑर्बिटल का अलग एनर्जी है, ऑर्बिटल शेल, सब शेल में सब शेल का अलग एनर्जी है, सब शेल किसी शेल में उसका एक अलग एनर्जी, और इसलिए आपको splitting of spectral line मिलता है, that is energy within the energy, like that this structure what we can see here, and this has been actually studied by this quantum mechanical model. So quantum mechanical model, when studied the spectrum of hydrogen atom and some other atoms, they found that the splitting of spectral line occurs because there are different energy levels which are present in an atom, and these different energy levels are studied or put forth or find out, or they can say they can be defined by this three quantum numbers. Quantum mechanical model starting में से तीन ही quantum number ढूंढ पाया। अब ये क्वांटम नंबर क्या है? क्वांटम नंबर इज नथिंग बट इट इज द सिंपली एड्रेस टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेल्स एंड सबसेल। ठीक है, मानो कि अगर आपका दोस्त मानो बॉम्बे से आपके पास पुणे में आ रहा है, कोई आपका दोस्त पुणे में आ रहा है, और उसने बोला कि चलो मैं आपके पास आ रहा हूँ, और आप नए शायद पुणे में शिफ्ट हो चुके हो, या फिर आपका नया कुछ एड्रेस है, आपके दोस्त को एड्रेस पता नहीं, तो सिंपली वो आपको आपका एड्रेस पूछेगा कि आपका एड्रेस क्या है,
हम सिर्फ इतना बोलेंगे नहीं आ जा पुणे में, देन देख लेंगे, तो वैसा तो आपका दोस्त नहीं आ पाएगा, आपको पहले बताना पड़ेगा। नहीं तो एटलीस्ट कम से कम वो पुणे में पहुंचने के बाद तो आपको बताना पड़ेगा कि यार ठीक है, पुणे में आने के बाद तू ये विमान नगर एरिया में आजा, विमान नगर एरिया में आने के बाद इस सोसाइटी में, इस बिल्डिंग में, और इस बिल्डिंग में मेरा ये फ्लैट लग रहा है, इस तरीके से हमारा एड्रेस होगा। उसी तरीके से किसी भी एटम के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज स्फेरिकल, और उस स्फेरिकल एटम के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन का पता ढूंढना है तो किस तरीके से ढूंढा जाए, इलेक्ट्रॉन का पता ढूंढना है तो किस तरीके से ढूंढा जाए। सो इन ऑर्डर टू फाइंड द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, जो पूछा गया था उधर कोड को बोर को पूछा गया था कि हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन एन एटम, आप बता दो इलेक्ट्रॉन कौन से किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो कहाँ पे होते हैं, वो नहीं बता पाए थे। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बता पाता है because of these quantum numbers. So quantum numbers are exactly the things or the points or the concept which are useful to find out exact location of electron in an atom, to find out exact cells, subcell, orbitals in an atom, to find out exactly energy levels in an atom. So quantum number is a set of values. It is a set of properties which is useful to find out the exact energy level in an atom. That means the location of electron in atom, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी लेवल के अंदर है। सो ये फाइंड आउट करने के लिए वो आता है, एंड दैट इज नथिंग बट द क्वांटम नंबर्स। सो ये उसके अंदर क्वांटम नंबर्स आते हैं। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल तीन ही क्वांटम नंबर्स ढूंढ पाया। दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर व्हिच डिनोट्स द शेल, then azimuthal quantum number which denotes the subcell, and you can say magnetic quantum number which denotes the orbital देता है। But there is a scientist called Glenn and Goldsmith. They afterwards in 1925 afterwards they contributed fourth quantum number. There should be a fourth quantum number, and they found it actually because of this splitting of spectral lines, and that is nothing but the spin of electron. That is spin quantum number. So इस तरीके से चार क्वांटम नंबर फाइनली आते हैं। तो आज की तारीख में हमारे लिए ऐसे फोर क्वांटम नंबर्स हैं which are given by quantum mechanics. तो पहले तीन ढूंढेंगे और उसके बाद फोर्थ उसके अंदर ऐड हुआ, that is spin quantum number. तो as of now we have four quantum numbers. This is a very important gift, very important discovery of this quantum mechanical model. Simply quantum mechanical model is nothing but the quantum numbers. And उसका मैथमेटिकल बहुत सारा प्रूफ है, हर चीज का मैथमेटिकल उसका प्रूफ है, but जैसे हमने बताया कि that is out of scope of our book. So quantum mechanical model का इक्वेशन ये है, Hamiltonian into psi is equal to E into y. तो Hamiltonian is a mathematical operator and psi is a wave function. इसकी जो बात कर रहा था, wave function, हर एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन और उसका जो ऑर्बिटल है उसके एनर्जी के साथ जुड़ा हुआ है, और वो एनर्जी इस वेवलेंथ के साथ जुड़ी हुई है, लाइक दैट, and that is nothing but given by the psi function ये देता है, that is related to the wave function, particular wave अगर इसका होगा तो अलग होगा, wave इसका होगा तो अलग होगा, wave इसका होगा तो अलग होगा, तो अलग-अलग wave उसका ये psi उसे डिनोट करता है, मतलब psi डिनोट करता है wave function which is emitted types of like that, and E डिनोट करता है total energy of the system. ये जो total energy है सिस्टम का वो E डिनोट करता है, that is what we can say this is। तो मैथमेटिकल पे हमें ज्यादा स्ट्रेस देना नहीं, बस थ्योरेटिकली उसे समझना है, because it is out of scope and out of the scope of study or book to again. So that's why let's move. The important outcome of this quantum mechanical model is that for the quantum numbers. So there is a phenomenon called as quantum number and orbital. So what is this quantum numbers and orbital? So orbital is one of the important phenomena where this is the three-dimensional space around the nucleus of an atom, where the probability of finding electron is maximum. That is called as an orbital. So there is a one phenomena called as an orbital. तो अगर हम न्यूक्लियस की बात करते हैं, न्यूक्लियस अगर हम ऐसा सर्कुलर पाथ निकालते थे, फिक्स पाथ, पूरे स्फीयर में एक सर्कुलर पाथ, ठीक है, स्फीयर अलग बात है, उसके अंदर एक सर्कुलर पाथ होना अलग बात है ना। जैसे कि हम लोग टू व्हीलर फोर व्हीलर चलाते हैं, तो हम जब टू व्हीलर फोर व्हीलर किसी ग्राउंड पे जाके चलाते हैं, तो ग्राउंड पे आपको कोई रास्ता नहीं है, आप कहीं भी ग्राउंड पे लेके जा सकते हो जहाँ पे क्लीन होगा वहां। वही टू व्हीलर कार जब हम रोड पे चलाते हैं तो प्रॉपर रोड पे चलाना पड़ता है, उसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, राइट। तो उसी तरीके से ग्राउंड पे टू व्हीलर फोर व्हीलर चलाना और एक्चुअल रोड पे चलाना, इसमें जितना डिफरेंस है उतना यहाँ पे। स्फीयर में ये टोटल स्फीयर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज टोटल स्फीयर, स्फीयर में सेंटर में न्यूक्लियस है, और उस न्यूक्लियस के अराउंड में स्फेरिकली इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूम सकता है, कहीं भी घूम सकता है। माना एक पेन ये मेरा उसका न्यूक्लियस है, तो इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड में इस तरीके से घूम सकता है, इलेक्ट्रॉन इस तरीके से घूम सकता है, इलेक्ट्रॉन देयर आर इनफिनाइट वेज जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। सो दैट्स व्हाई ये न्यूक्लियस के अराउंड में स्फेरिकल स्पेस है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व किसी ना किसी सर्कुलर पाथ में होगा, लेकिन वो सर्कुलर पाथ स्फीयर में कैसे होगा, किस तरीके से होगा, क्योंकि देयर आर एन नंबर ऑफ सर्कल्स व्हाट वी कैन ड्रॉ इट। एंड इसीलिए ऑर्बिटल नाम का कॉन्सेप्ट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आता है। दिस इज द थ्री डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड में थ्री डायमेंशनल स्पेस। अभी मैं बोर्ड पे कैसा भी निकालूंगा तो कितना आएगा, वो 2D आएगा,
मैं बोर्ड पे जो निकल पा रहा हूँ 2D निकल रहा है, ऐसा निकल रहा है, ऐसा नहीं निकल पा रहा है। सो आप उसको इमेजिन कीजिएगा, दिस इज द 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, ऐसा वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। मैं यहाँ से अगर किसी इलेक्ट्रॉन को ढूंढने निकलता हूँ तो पूरे स्फीयर में इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है, पूरे स्फीयर में इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है। तो यहाँ से डायरेक्शन भी मैटर करेगा और डिस्टेंस भी मैटर करेगा। और यहाँ पे सिर्फ एक्स वाई एक्सिस नहीं है, यहाँ पे स्फेरिकल है, तो स्फीयर के अंदर उसका डायरेक्शन न्यूक्लियस से कहाँ जाना है और कितने डिस्टेंस पे जाना है, दोनों चीजें बहुत ज्यादा मैटर करेगी इसके अंदर। एंड इसीलिए ये ऑर्बिटल नाम का कॉन्सेप्ट यहाँ पे रखा गया है, दैट इज दिस इज द 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ठीक है, मानो आपके दोस्त होते हैं, आप जानते हो आपके मतलब हर एक दोस्त कैसा होता है आप अच्छी तरह जानते हो आपका। मानो आप आपके दोस्त के बारे में जानते हैं, और मानो कि आप कॉलेज में जा रहे हो, आपको पता है कि आपका दोस्त इवनिंग को 5 o'clock कहाँ पे मिलेगा, सुबह 11 बजे कहाँ पे मिलेगा, है ना। मतलब कुछ बच्चों को अगर मानो एक्सरसाइज करने की आदत है, आप जानते हो कि मेरा ये दोस्त है कि शाम को 5 बजे वो किसी न किसी जिम में मुझे मिलेगा, बिकॉज वो एक्सरसाइज करता है, लाइक दैट देयर मे बी मेनी अदर सिनेरियोज, बट आप आपके दोस्त के बारे में जानते हो कि वो इस टाइम पे यहाँ पे मिलने की चांसेस है। उसी तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मिलने की चांसेस है, तो दो चीजें आती है, डायरेक्शन फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, बोथ मैटर्स, एंड दैट हैज टू बी डिनोटेड बाय 3 डायमेंशनल concept, and 3 dimensional concept is nothing but the orbital. The orbital is 3 dimensional space around the nucleus where the probability of finding the electron is maximum. Probability of finding the electron is maximum, and that phenomenon is called, you can say, orbital. तो ये ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट हमारे सामने आ जाता है। नाउ इस ऑर्बिटल के बाद जहाँ पे जैसे मैंने बताया कि देयर इज वन इंपॉर्टेंट फिनोमेनन क्वांटम नंबर्स, तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट आउटकम है, दिस इज नथिंग बट द quantum numbers, and there are 4 quantum numbers. Number one is, you can say, principal quantum number which is denoted by n. दूसरा you can say azimuthal quantum number which is denoted by L. तीसरा magnetic quantum number, and fourth is spin quantum number. ऐसे अलग अलग क्वांटम नंबर आपको उसके अंदर मिलते हैं, तो हमें वन बाय वन चारों डिस्कस करने हैं। पहला देखते हैं हम लोग व्हाट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। This principal quantum number is a set of values which describe the exact location of electron in atom, or which is useful to find the energy level in an atom. So पहला डिस्कस करते हैं हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आपको एग्जाम ओरिएंटेड ये 4 क्वांटम नंबर प्रिपेयर करने हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आने की चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। मतलब इस चैप्टर का सबसे आईएमपी टॉपिक कौन सा रहेगा, तो क्वांटम नंबर्स। इसमें से कोई भी 2 मिनिमम आपको एग्जाम में आने ही आने हैं 11th स्टैंडर्ड के। ये अभी तक का हिस्ट्री है, एक आध अगर साल एक्सेप्शनली जाता है तो इट्स डिफरेंट पार्ट, बट 99% ये 4 क्वांटम नंबर्स में से 2 एटलीस्ट आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। है बहुत इजी, सिंपल बात है। व्हाट आर द क्वांटम नंबर्स? इट इज अ सेट ऑफ वैल्यूज व्हिच इज यूजफुल टू फाइंड आउट द एनर्जी लेवल्स इन एन एटम, या फिर to find out the exact location of electron or distribution of electron in an atom. So that is, you can see, simply quantum numbers. These quantum numbers are given by quantum mechanical model, and these are, number one is principal quantum number. अभी बात करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिनोट्स द शेल। थ्योरेटिकल सेंस में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल बताता है, एटम के अराउंड में जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते हैं उसे शेल कहा जाता है। ओके, या फिर उसे दूसरा उसे मेन एनर्जी लेवल कहा जाता है, मेन एनर्जी लेवल। Okay, principal quantum number is also called as main energy level. Next बात इसके अंदर कि principal quantum numbers are denoted as, they are numbered as denoted by n, and values of n are 1, 2, 3, 4 away from the nucleus. So principal quantum number is denoted by n. तो अगर हम atomic structure में कहीं भी n लिखते हैं तो this n is nothing but the denoting the principal quantum number, that is main shell, और ये main shells are numbered as 1, 2, 3, 4 away from the nucleus or either K, L, M, N, because already ये दिया था, किसने दिया था? बोर ने कॉन्सेप्ट बताया था, उसी को कायम किया किसने? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो देयर आर शेल, these shells are also called as main energy levels, एनर्जी की भाषा में, और उसे थ्योरेटिकल सेंस में अगर नंबर देने हैं तो शेल 1, 2, 3, 4 ऐसे। सो शेल्स आर नंबर्ड एज 1, 2, 3, 4 अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो यहाँ से जैसे हम निकलते हैं न्यूक्लियस से, तो दिस इज 1, 2, 3, then 4th, like that. So these are the structure of atom we can have here. So this is a difference of direct. Now, how many orbitals, हम जो अभी orbitals देखे थे, how many orbitals are present in shell? किसी भी shells के अंदर कितने orbitals होते हैं? So the orbitals present in shells is given by n square. So this is the n square formula. So इतने orbitals उसके अंदर present होते हैं। तो अगर हम मानते हैं देखिए कि मैं n is equal to 1 लेता हूँ, तो n square का वैल्यू कितना आएगा? फिर n square का वैल्यू आएगा, that is 1 square, and that is nothing but 1. ऐसा होता है, मतलब उसके अंदर कितने ऑर्बिटल है? ओनली 1।
तो पहले शेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट है, उसका मतलब मैं अगर n का वैल्यू 2 लेता हूँ तो n स्क्वायर कितना आएगा, 2 का स्क्वायर रहेगा, दैट विल बी 4। तो उसके अंदर 4 ऑर्बिटल्स है, मतलब पहले शेल के अंदर 4 ऑर्बिटल्स है। ओके, क्योंकि हमने बताया एटम के अंदर शेल्स है, शेल्स के अंदर सबशेल है, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स है जिसमें एक्चुअली इलेक्ट्रॉन रहता है, जिस ऑर्बिटल के अंदर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन रहता है। तो इन दैट सेंस यू कैन हैव लाइक दिस। यहाँ पे अगर आप ऐसा लेते हैं n इज इक्वल टू 3, तो हियर क्या आएगा फिर आपका n स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 9, है ना। सो लाइक दैट, तो इतने हम लोग को मिलते जाएंगे। सो दैट इज व्हाट वी कैन से, उतने ऑर्बिटल्स हम लोग उसके अंदर मिलते जाएंगे। सो दैट इज व्हाट वी हैव हियर, 3s 3p 3d, टोटल आपको उतने उसके अंदर ऑर्बिटल्स मिलेंगे। सो इस तरीके से ऑर्बिटल्स फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग। 9 है, ओके, क्योंकि स्क्वायर करना है, सिंपल फार्मूला है। How many orbitals are present in any of the shells? n square orbitals are present in that. तो किसी भी शेल का वैल्यू पुट करो, उसके अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट इज व्हाट वी कैन से दिस इज, एंड this gives the principal quantum number gives the size of electron cloud. Electron cloud, this is, you can say, this gives the size of electron cloud. Size of electron cloud मतलब क्या है कि शेल, जैसे हमने बताया कि orbital concept क्या है, this is a 3-dimensional space where the probability of finding the electron is maximum. Probability of finding the electron is maximum. तो उसका मतलब ये होता है कि this is the nucleus, और nucleus के अराउंड में this is the space where the probability of finding the electron is maximum. तो अब देखिए, हम जब न्यूक्लियस से पहले इलेक्ट्रॉन को ढूंढने के लिए निकलते हैं, तो मैं यहाँ तक इस डायरेक्शन में चलता हूँ, तो इलेक्ट्रॉन मिलने की चांसेस बढ़ते 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 जाते, तो इस एरिया में इलेक्ट्रॉन मिलने की चांसेस ज्यादा है। इसके बाद वापस वो कम कम हो जाता है, मतलब फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन इस एरिया में, स्फेरिकल एरिया में मिलने की चांसेस ज्यादा है, और वो बताने वाला दैट इज नथिंग बट साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, दैट इज द शेल। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑलवेज डिनोट मेन शेल और मेन एनर्जी लेवल, दैट आल्सो गिव्स द साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड कितना है अराउंड द न्यूक्लियस, वो बताता है, दैट इज डिनोटेड बाय n, एंड द वैल्यू ऑफ n changes from 1 to 3 4 onwards, that is called principal quantum number. And what are the orbitals present, how much orbitals are present in a principal quantum number, that is given by n square, वो n square से दिखाया जाता है। So that is okay. So this is that's all for here. You can say principal quantum number. Also देते हैं कि number as k l m n, ये भी दिया जाता है, जो हमने देखा था कि बोर ने दिया था, तो ये भी उसके अंदर दिया जाता है। So this is that's all for this principal quantum number. Now the second quantum number की जब बात करते हैं लोग, तो second quantum number is nothing but you can say azimuthal quantum number. तो second quantum number होता है आपका azimuthal quantum number. Okay, so we have here second azimuthal quantum number. Azimuthal quantum number, that is denoted by L. तो second scientist उसके नाम से दिया हुआ, that is azimuthal quantum number, ये हम जानते हैं। एंड इसके बारे में अगर देखते हैं azimuthal quantum number के, तो कंपेयर करते हैं। इसके अंदर पहला पॉइंट क्या था, शेल। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिव्स शेल, azimuthal quantum number must give सब शेल, वो क्या रहता है, सब शेल। That is also called as सब एनर्जी लेवल, सब एनर्जी लेवल ये देता है। तो देखिए, ये क्वांटम नंबर ना कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। मेरे पास स्पेस बहुत थोड़ा सा कम है, इसलिए मैंने तो चारों एक साथ बोर्ड पे लिखते थे हम लोग, और चारों में प्रॉपर्टी कंपेयर कर सकते हैं। आप पहले वाले की प्रॉपर्टी कंपेयर कीजिए। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अंदर क्या था, इट गिव्स मेन शेल और मेन एनर्जी लेवल। तो एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या देता है, इट गिव्स अ सब शेल और सब एनर्जी लेवल। फिर उसके बाद था डिनोशन, दिस इज डिनोटेड बाय एल, डिनोटेड बाय एल। और वैल्यूज ऑफ एल क्या होते हैं, एल्स आर नंबर्ड एज एस पी डी और एफ। थ्योरेटिकली एल की वैल्यू क्या होता है, एस पी डी एफ, बट मैथमेटिकली उनके वैल्यू होते हैं 0 1 2 3, इस तरीके के वैल्यू होते हैं। सो अगर हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की बात करते हैं, तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल डिडंट स्पीक इन द फॉर्म ऑफ थ्योरेटिकल, इट टॉक्स इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। जैसे कि आपको आपके स्कूल में रोल नंबर्स दिए जाते हैं, आपके नाम से नहीं कॉल, मतलब इज दिस रोल नंबर प्रेजेंट और एब्सेंट, इतना पूछा जाता है। सो योर आइडेंटिटी इन द स्कूल इज लाइक रोल नंबर, बट उस रोल नंबर एक पर्टिकुलर बच्चों को असाइन किया गया। उसी तरीके से यहाँ पे कि azimuthal quantum number के रोल नंबर क्या है, 0 1 2 3। 0 is always S, 1 is always P, 2 is always D, 3 is always F। तो S P D F this is a theoretical names, और एक्चुअली उनके मैथमेटिकल नेम 0 1 2 3 इस तरीके से है। सो दैट इज व्हाट वी है। एंड उसके अंदर ये होता है कि अगर हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करें, दैट इज n, तो एवरी n हैज हाउ मच वैल्यूज ऑफ l, l के वैल्यूज कितने होते हैं, तो एवरी n हैज वैल्यू ऑफ l दैट इज 0 to n - 1, 0 to n - 1 होते हैं, 0 to n - 1 इतने होते हैं। मतलब
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अंदर कितने सबसेल होते हैं थियोरेटिकली, मतलब इंग्लिश में किस तरीके से पूछेंगे, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एल फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एन, ओके, या फिर वैल्यू ऑफ फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एन हाउ मच आर द वैल्यूज ऑफ एल, दैट्स व्हाट वी कैन से। तो हर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अंदर कितने सबसेल्स हैं, तो दैट इज गिवन बाय 0 to n minus 1 फॉर्मूला, 0 to n minus 1 फॉर्मूला। तो इसका मतलब क्या होता है इसमें भैया, 0 to n minus 1 मतलब 0 to n, n का वैल्यू 1 लेते तो 1 minus 1 is equal to 0, 0 to 2 minus 1, तो 2 minus 1 is 1, तो 0 and 1, इसका ऐसा मतलब है here n is equal to 1, here 0, sorry, n is equal to 0, n is equal to 1, ऐसा वैल्यू होता है। सॉरी, यहाँ पे n is equal to 1 है, यहाँ पे n is equal to 2 लिया है, because यहाँ पे we put this one। See, हर n के लिए l का वैल्यू कितना होता है, 0 to n minus 1, मतलब हर शेल्स के अंदर कितने सबसेल है, तो 0 to n minus 1, यहाँ पे n का वैल्यू पुट करो उतने सबसेल प्रेजेंट है। इसका मतलब है अगर मैं पहले प्रिंसिपल सेल की बात करता हूँ, पहले शेल्स की बात करता हूँ, तो पहले सेल के अंदर कितने सबसेल्स हैं, तो 0 to n minus 1 मतलब 0 and 1 minus 1 is 0, 0 to 0 मतलब 0, एक ही है। तो सिर्फ 0 नंबर का सबसेल उसके अंदर प्रेजेंट है, 0 नंबर का सबसेल मतलब s सबसेल है, तो पहले सेल के अंदर सिर्फ s नाम का सबसेल उसके अंदर प्रेजेंट आपको मिलता है। हम n is equal to 2 लेते हैं, n is equal to 2 लेते हैं, तो 0 to 2 minus 1, तो 0 to 2 minus 1 मतलब 0 to 1, मतलब 0 and 1, तो दूसरे शेल के अंदर 0 and 1 नंबर का सबसेल प्रेजेंट है। 0 and 1 नंबर मतलब ये दो रहे, s and p, तो दूसरे शेल्स के अंदर s and p नाम का थियोरेटिकल सबसेल प्रेजेंट होता है, दैट इज व्हाट वी कैन से। यहाँ पे अगर मैं n is equal to 3 लेता हूँ, तो इट विल बी 0 2 3 minus 1, तो 3 minus 1 कितना आएगा 2, इसका मतलब है 0 1 and 2, 0 1 2, मतलब दिस यहाँ पे जितना फिगर आ रहा है कि 3 minus 1 is 2, that doesn't indicate कि 2 इतना वैल्यू है, that indicates कि उतने उसके सबसेल्स है, उतने वहां तक के, तो 0 1 and 2 ये तीन सबसेल उसके अंदर प्रेजेंट है। 0 कौन है s, 1 कौन है p, 2 कौन है d, लाइक दैट, सो ऑनवर्ड्स हम कितने भी निकाल सकते हैं। दिस इज जस्ट फार्मूला, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ l आर देयर फॉर एवरी वैल्यू ऑफ n, n के हर वैल्यू के साथ l के कितने वैल्यू बनते हैं, तो 0 to n minus 1 इतने वैल्यूज बनते हैं, एंड दिस आर हियर, एंड थियोरेटिकल दैट सेंस में हर शेल्स के अंदर कितने सबसेल्स और इतना सबसेल्स उसके अंदर प्रेजेंट होता है, दिस इज गिवन बाय यू कैन से azimuthal quantum number। So this is the difference, and that gives the orientation of uh, electron cloud. Principal quantum number gives the size of electron clouds. This gives the orientation. Orientation, मतलब shape of electron. Sorry, shape of electron cloud. Shape is the right word. Shape of electron cloud. Principal quantum number क्या देता है? Size of electron cloud. Azimuthal quantum number क्या देता है? Shape. Shape मतलब S P D F. अभी इनके अगर बात करते हैं आप थोड़ा सा और डिटेल में जाके, तो S का शेप स्फेरिकल होता है, P का शेप डम्बल शेप होता है, D का प्लेनर कॉम्प्लिकेटेड और F का नॉन प्लेनर कॉम्प्लिकेटेड, ये उनके शेप्स है। हम देखेंगे इन ऑर्बिटल के शेप साइजेस भी देखेंगे हम लोग, बिकॉज़ देयर इज अ चैप्टर 1 चैप्टर कॉलेज और केमिकल बॉन्डिंग, उसके अंदर हमारे सामने ये आएंगे ऑर्बिटल शेप, शायद आपने 10th में सीबीएसई और आईसीटी बोर्ड के बच्चों में देखे हुए हैं, व्हाट आर दिस शेप्स ऑफ द ऑर्बिटल्स, सेल्स एंड सबसेल्स ऑर्बिटल्स। सो दिस शेप्स आर नथिंग बट S subshell is spherical one, P is a dumbbell shape, D is planar complicated, and this is non-planar complicated. Like this, these are the shapes of this over here. So here, this azimuthal quantum number gives the shapes of electron cloud. Size of electron cloud principle. Shape of electron cloud is by azimuthal quantum number. ठीक है? So this is what we can say azimuthal quantum number. And next is nothing but we can say तीसरा quantum number is nothing but magnetic quantum number. So third quantum number is you can say magnetic quantum number. Magnetic quantum number is denoted by m or ml, more correctly ml, क्योंकि magnetic quantum number दो माने जाते हैं, एक magnetic ml और दूसरा magnetic spin, मतलब ms बोला जाता है उसे, that is spin quantum number, which is fourth one. So this is third one, magnetic quantum number. Magnetic quantum number gives the orientation. अगर हम लोग पहले पॉइंट के तरीके से ही लेते तो उससे मैं लास्ट में लिखता, क्योंकि हमने कंपैरेटिव लिखना है तो वो लास्ट में ज्यादा परफेक्ट होगा। Magnetic quantum number gives the orbital. Magnetic quantum number gives the orbital, that is also called as an orbital. देखिए, principal quantum number gives a shell. Okay, then azimuthal quantum number gives subcell. So this magnetic quantum number gives orbital. ये उनके नाम है, तो shell, subcell, orbital. Shell is given by principal, subcell is given by azimuthal, and orbital is given by magnetic quantum number. Okay, now these orbitals are
these orbitals are मतलब denote कैसे जाता है? These orbitals are denoted by m, so they are denoted by ml, है ना? ml से दिखाया जाता है, मतलब मैग्नेटिक कांस्टेंट नंबर azimuthal के हिसाब से दिखाया जाता है. Now जैसा हम देखेंगे every n has the certain value of l. every n मतलब every shell has some certain subcells. तो every l has some certain orbitals. ये भी होता है ना, l के अंदर ऑर्बिटल, क्योंकि शेल्स के अंदर सबसेल है और सबसेल के अंदर क्या होता है? ऑर्बिटल. every n has the value of l, every l has the value of m. वैल्यू ऑफ m होता है, और m के वैल्यू कितने होते हैं? तो 2l plus 1 इतने होते हैं. 2l plus इतने होते हैं, मतलब every n has the value of l and every l has the value of m. मतलब एवरी शेल के अंदर सबसेल है, सबसेल के अंदर ऑर्बिटल है. तो कौन से शेल के अंदर कितने सबसेल और कौन से सबसेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स? तो अब देखिए ना, अगर हम n = 1 पुट करते हैं तो l = कितना आता है? हमने देखा l = कितना आता है? 0 to n - 1, दैट इज 1 - 1. कितना आया था? 0 to 0, मतलब 0. तो इसको हम लोग s कहते हैं, s कहते हैं. तो अगर हम पहला शेल देखते हैं तो उसके अंदर एक ही ऑर्बिटल है, 0 नंबर का. अब वो वैल्यू यहाँ पे रखते हैं हम लोग, m के लिए रखते हैं. m थोड़ा आगे लेता हूं मैं. m = 2l + 1, ऐसा. तो इसके अंदर देखिए ना कि m = 2 into l. l का वैल्यू कितना है? 0. 2 into 0 plus 1, तो कितना आएगा? 2 0 0 0 plus 1 1. अभी ये 1 वैल्यू है, दैट 1 is nothing 0, क्योंकि इसके वैल्यू जो होते हैं ना -1 0 to +1 चेंज होते हैं नंबर लाइन के ऊपर, नंबर लाइन के ऊपर. हम जब नंबर लाइन कैलकुलेट करते हैं, दिस इज नंबर लाइन, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? +1, यहाँ पे क्या आएगा? +2, यहाँ पे क्या आएगा? +3, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2 -3. तो ये जो वैल्यूज ऑफ m जो होते हैं ना, वैल्यूज ऑफ m आर गिवन बाय दिस नंबर लाइन एंड दे ऑलवेज वेरी स्ट्रांग, -1 to +1, मतलब जितना लेफ्ट की तरफ जाएगा उतना राइट की तरफ जाएगा. यहाँ पे जीरो वैल्यू नंबर लाइन पे यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, तो ओनली वन वैल्यू इज देयर, ओनली वन. तो इसका मतलब है पहले शेल्स के अंदर s नाम का सबसेल है और जिसके अंदर 0 नाम का ऑर्बिटल है. तो एक ही शेल, एक ही सबसेल, एक ही ऑर्बिटल, ऐसा पहले इसका केस आता है. अगर हम दूसरे इसकी बात करते हैं तो n = अगर 2 की बात करते हैं तो l के वैल्यू कितने आएंगे? देखिए l = क्या आएगा? 0 to n - 1, 0 to n - 1, मतलब 0, और n - 2 - 1 is 1, तो 0 and 1 आएगा, तो उसे हम लोग s और p कहते हैं. ठीक है, तो अभी यहाँ पे उसके m के वैल्यू 2 आएंगे. एक जब m का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो 0 लेके, तो 0 लेके मतलब 2 into 0 plus 1 is equal to कितना आएगा? 0 भी आएगा. अब दूसरा लेना पड़ेगा 1, that is m = 2 into 1 plus 1, तो 2 1 are 2 plus 1 is 3, और ये जो 3 है, 3 वैल्यू है नंबर लाइन पे. 3 मतलब 1 2 और 3, जितना लेफ्ट की तरफ उतना राइट की तरफ, तो ये वैल्यू भी कंसीडर करना पड़ेगा, ये भी और ये भी. तो -1 to प्लस, तो -1 0 एंड प्लस, ये तीन कौन से होते हैं? -1 0 एंड +1, ये तीन ऑर्बिटल्स होते हैं, तीन ऑर्बिटल्स होते हैं. तो सेकेंड शेल के अंदर दो सबसेल्स हैं, सेकंड शेल के अंदर दो सबसेल है, s एंड p, 0 एंड 1. 0 के अंदर 0 ऑर्बिटल है, p के अंदर 3 ऑर्बिटल है, p के अंदर 3 ऑर्बिटल है. कौन से 3 ऑर्बिटल है? -1 नाम का, 0 नाम का और +1 नाम का. दैट इज दिस डिनोट द वैल्यू. देयर आर 3 ऑर्बिटल्स. व्हिच आर दे? -1 0 +1, because their value changes from -1 to +1 on number line like this. तो ये उसके अंदर आता है. अब देखिए ना, हमने एक फॉर्मूला दिया था, दैट इज n स्क्वायर. n स्क्वायर किसी भी शेल्स के अंदर, किसी भी शेल्स के अंदर कितने ऑर्बिटल्स है? तो n स्क्वायर ऑर्बिटल्स है. तो अभी देखिए शेल कौन सा नंबर का है? 2 नंबर का शेल है. 2 नंबर का शेल, उसका स्क्वायर करते हैं, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4. तो इसके अंदर 4 ऑर्बिटल होते हैं. कौन से 4 ऑर्बिटल? देखिए ये 0 नंबर का एक है, हाँ, फिर ये -1 0 और +1, ये 3 और 1 4 ऑर्बिटल हो गए. सो दैट इज टैली. तो इसका मतलब ये टैली है. इस तरीके से n का हम 3 पुट करते हैं, n का यहाँ पे 3 पुट करेंगे, तो यहाँ पे आपको उसके 3 ऑर्बिटल मिलेंगे, यहाँ पे उसी हिसाब से उसके ऑर्बिटल मिलेंगे, ये शेल मिलेंगे, यहाँ पे ऑर्बिटल मिलते जाएंगे. सो दिस इज व्हाट वी कैन से azimuthal quantum number. और लास्ट में azimuthal quantum number, that's sorry, magnetic quantum number. Magnetic quantum number gives the orientation of electron cloud, orientation, direction. Principal quantum number gives the size of electron cloud. Azimuthal quantum number gives shape of electron cloud. And this azimuthal quantum number, this magnetic quantum number gives the orientation. Orientation, किसी भी एक एक्सिस पे उसका orientation होगा like that. That orientation, that direction is given by this magnetic quantum numbers. अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं. सिंपली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट आर द क्वांटम नंबर्स. क्वांटम नंबर्स आर द numbers. This is the set of values which gives the main energy levels in an atom, or you can say these are useful to find out the location of electron in an atom. And these quantum numbers are principal,
azimuthal and magnetic quantum number. These are three first, and fourth one is spin quantum number. और सबके अंदर क्या देखा हमने कि उसे शेल कहा जाता है, सब शेल कहा जाता है, ऑर्बिटल कहा जाता है. वो डिनोट n से किया जाता है, l से किया जाता है, m से किया जाता है. उसके बाद उसके वैल्यूज कौन से होते हैं, कितने सेल्स के अंदर, कितने सब सेल्स के अंदर कितने ऑर्बिटल्स. तो दिस इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दिस इज उसके अंदर का एजिमुथल क्वांटम नंबर, दिस इज उसके अंदर का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर व्हिच गिव्स द ऑर्बिटल एक्चुअली. एंड लास्ट, अभी कोई भी ऑर्बिटल होता है तो किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट होते हैं. एनी ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड दैट्स व्हाई these 2 electrons has the speed. Then scientists find out, that is Boltzmann named scientists find out that there is a fourth quantum number called as spin quantum number. Spin quantum number, and that is given by ms. Ms, that is, it's a part of magnetic quantum number, but it is a spin, so that is also called as magnetic spin quantum number or spin quantum number. So we have this spin quantum number. और इसके बारे में क्या होता है, this gives the spin of electron, simply spin of electron. Electron has two spins, it is denoted by ms. इसे दिखाया जाता है ms से दिखाया जाता है. और electron has a two spin, that is you can say clockwise, और दूसरा anti clockwise. Clockwise denoted by 1/2, and this is denoted by -1/2. So this is the clockwise rotations, spin of electron. Electron spin होता है, हम क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट के अंदर होता है एक ऑफ स्पिन और एक होता है लेग स्पिन, है ना. तो जिस तरीके से क्रिकेट में एक ऑफ स्पिन होता है और एक लेग स्पिन होता है, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन के जो स्पिन होते हैं, मूवमेंट्स होते हैं किसी भी सब्सटेंस में, वो क्लॉकवाइज हो सके या एंटी क्लॉकवाइज हो सके. क्लॉकवाइज अगर इलेक्ट्रॉन रोटेट हो रहा है तो दैट इज रोटेट बाय +1/2, और एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेट हो रहा है तो -1/2. इस तरीके से उसे डिनोट किया जाता है. सो दीस आर द स्पिन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है, सपोज दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम और इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन भी होता है. तो दिस इलेक्ट्रॉन एज लाइक अर्थ, मतलब दिस स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैन बी कंपेयर्ड विद आवर सोलर सिस्टम. हमारे सोलर सिस्टम में सन इज एट द सेंटर एंड अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. Earth revolves around the sun. As Earth, while revolving around the sun, revolves around its own axis. Earth, while revolving around the sun, revolves around its own axis. Earth खुद भी रोटेट होती है और फिर सन के अराउंड में भी रोटेट होती है. उसी तरीके से this electron revolves around the nucleus at the same time revolves around its own axis. इलेक्ट्रॉन खुद के एक्सिस के अराउंड में भी रोटेट होता रहता है, और उसके खुद के एक्सिस के अराउंड में जो रोटेट होने के तरीके दो है, दैट इज यू कैन से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. किसी भी ऑर्बिटल में, जैसे कि किसी भी ऑर्बिटल में ये ऑर्बिटल है, इस ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन होंगे, एक होगा क्लॉकवाइज, दूसरा होगा एंटी क्लॉकवाइज. तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज गिवन बाय अपवर्ड डायरेक्शन एंड एंटी क्लॉकवाइज गिवन बाय डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो अगर आपको कहीं भी स्पिन, इलेक्ट्रॉन का स्पिन +1/2 या फिर -1/2 से दिखाया जाता है, तो समझना चाहिए कि क्लॉकवाइज रोटेशंस एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दैट इज द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हाइल रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, एंड दैट गिव्स द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो उस स्पिन के साथ भी कुछ एनर्जी रिलेटेड है, उसका भी एक अलग से स्पेक्ट्रम आ जाता है, एंड दैट इज बीन स्टडीड बाय द Goldsmith scientist, and that's what we get over here. So इस तरीके से आता है. तो these are the four quantum numbers. That is a very important outcome of this quantum theory or quantum mechanical model. So be clear here, quantum mechanical model didn't put forth the new atomic model, but they explained the atomic model put forth by Rutherford Bohor. But they have proved it on very, very scientific methods, very perfect mathematical values and all. And that is nothing but they've given the quantum equation, that is the Hamiltonian equation, also known as here, that is Hamiltonian psi is equal to energy into psi, and that gives the mathematical operator as well as you can say wave function, total energy of the system. And they put for the concept of you can say quantum numbers, and there are four quantum numbers: principal quantum number, azimuthal quantum number, magnetic quantum number, and spin quantum numbers. And these are used to find out the energy levels or address of electron in an atom, location of electron in an atom, is spherical one. So they give the size, the shape, the dimensions, their values, how many cells, how many subcells, how many orbitals, and they are given by some certain formula. That's what we have seen over here. Clear with us? So that is a very important part related with this quantum mechanical model. And that's all for today. See you tomorrow with next topics and very important topic, that is electron distribution by some other theories and all. So thank you very much. See you tomorrow then.